students. So our third topic is circulatory shock. We will discuss the circulatory shock. There are other types of shock also, but our third topic is limited to the circulatory shock. We will discuss the circulatory shock, and our learning objectives are we will know about that what is shock, the what are different grades of shock. ठीक है, इसमें आप ये देखें कि first thing is grade and the second thing is stages of shock and the fourth thing is type of shock. तो इसमें आपने confused नहीं होना है. You should clearly know about what are the grades, what are the stages, and what are the types. So there are three different categories in shock which we will discuss. And what are the physiological causes of shock? So we will discuss these causes, that how shock, physiological causes cause shock, and how we treat the shock. So these are the our today learning objective. Now, circulatory shock in public language or in common language, it is also called shock. इसको हम shock कहते हैं, जैसे कि फलाने बंदे को shock हो गया, जैसे ठीक है वो shock में चला गया. तो हम ये नहीं कहते कि circulatory है और psychogenic है, neurogenic है, बल्कि हम ये बस ये कह देते हैं कि बस बंदा shock में चला गया. But remember, at this moment we are talking about the circulatory shock. तो आम अल्फाज में इसको कहते हैं shock. It is a serious and life-threatening medical condition characterized by a decreased tissue perfusion to a point at which it is adequate to meet several metabolic needs. What we mean by the tissue perfusion? First of all, it is a serious and life-threatening condition. Life-threatening means इससे जिंदगी को खतरा होता है. When a person goes into shock, his life is in danger. He may die. So this is a life and serious condition, and it is because of the decreased tissue perfusion. Tissue perfusion उसमें कम हो जाती है. What is tissue perfusion? You know that the blood carry oxygen and nutrient to the all tissue of body. So when there will be no when there is circulatory failure or circulatory shock, the blood not circulate properly and not deliver properly oxygen and nutrient to the tissue. In this way, the condition causes which जिसकी वजह से क्या होता है कि the organ doesn't perform properly. फिर organ जो है सही तरीके से काम नहीं कर सकते. So all the body function are deteriorated. सारे body function जो है वो बिल्कुल unbalanced हो जाते हैं, and in this way, this is why we call it a life-threatening condition, and it is due to the decrease in tissue perfusion. Now, our first learning objective was that grade of shock. So, shock can be graded 1 to 4. It means it has 4 grades based on the physical sign. जैसे हम किसी बंदे को देख लेते हैं कि उसमें physical sign क्या क्या है. जब हम when you see a patient in casualty department or in your clinic or anywhere, when you see a patient, so you note some sign in a patient. आप उसमें कुछ देखते हैं, तो वो 4 ग्रेड में हम उन साइंस को डिवाइड कर लेते हैं, और इसी वजह से शॉक के 4 ग्रेड्स हैं. तो ग्रेड 1 में क्या होता है? In grade 1 there is loss of 15% of blood. ठीक है, and 15% of blood, you know that every person has a healthy person has 5 liter of blood, 5 to 5.6 or 6 liter. लेकिन normally and the average person, normal person has 5 liter of blood. उसमें 5 liter blood होता है. तो if
he lost 750 ml of blood, which is equal to 15% of the 5 liter. So the science arises, okay? And this is called the first grade of shock. और इसमें क्या होता है, what happened in first grade, this lead to mild resting tachycardia. Resting tachycardia means when a person is sitting or lying, so he start feeling tachycardia. Tachycardia means when a person is aware of his heart beating. Normally आप जो है ना आपको आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, बल्कि but you don't observe. But when you feel that your heart, when you start feeling your heart beating, जब आपको अपने दिल के धड़कन का एहसास होगा कि इसने धड़कना शुरू किया, तो this is called tachycardia or increased heart rate, and can be well tolerated in otherwise healthy individual. मतलब ये है कि a healthy individual can tolerate 750 ml loss of blood. अगर उससे 750 ml blood loss कर लेगा तो वो उसको आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं. इसी वजह से जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो ये कितना होता है, 450 होता है या 500 ml आप ब्लड डोनेट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं. इससे ज्यादा जब आप डोनेट करते हैं तो देन इट गोज इनटू द कैटेगरी ऑफ शॉक, एंड दिस इज ग्रेड 1 शॉक. ठीक है, तो 500 ml या 450 ml से ज्यादा ब्लड आप इसलिए डोनेट नहीं करते, बिकॉज ए पर्सन कैन टॉलरेट लॉस ऑफ 500 ml of blood very easily, and up to 750 ml loss. This is the symptoms and sign of shock occur, but it is mild and under control. Now, the grade 2 shock is the loss of blood is 15 to 30%, which means that 750 to 1500 ml blood is lost, and this provoke moderate tachycardia and begin to narrow the pulse pressure. ठीक है, pulse pressure इसमें ये आप देखें कि मैं आपको कुछ इस तरह से समझा देता हूँ कि नॉर्मली हमारे पास ये माइक्रो लैब है, अगर बदकिस्मती से ये हालात ऐसे हो गए तो नॉर्मली पल्स हम इस तरह होता है. दिस इज द टाइमिंग ऑफ पल्स and this is the volume of pulse. ठीक है, ये टाइम है और ये इसका क्या है, वॉल्यूम है. तो यहाँ पर नैरोइंग ऑफ द पल्स प्रेशर का मतलब क्या होगा कि ये यहाँ पर ये टाइम भी कम होगा और वॉल्यूम भी इसका कम हो जाता है. ठीक है, इसका टाइम भी कम हो जाता है और वॉल्यूम भी कम हो जाता है. और टैकिकार्डिया इसमें क्या होता है, मॉडरेट होता है, यानी माइल्ड से मॉडरेट, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. अगर वो 100 है तो ये 120 हो जाएगा. ठीक है. The time taken by the capillary to refill after 5 seconds of pressure, capillary refilling time will be extended. अब ऐसा कर लें कि अपने नाखून को दबाएं. ठीक है, ये जो इंडेक्स फिंगर के नाखून को आप ये है ना ये थंब से दबा दें तो ये आप देखें कि ये वाइट हो गया है. ठीक है, इट इज ड्यू टू एम्पटिंग ऑफ द कैपिलरी. और जब आप इसको प्रेशर रिलीज कर लेते हैं तो ये दोबारा पिंक हो जाता है. आपका नेल जो है ना दोबारा पिंक हो गया, आपने प्रेस किया नेल को तो ये सफेद हो गया, फिर छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं कैपिलरी रिफिलिंग. इसी तरह अगर आप सॉफ्ट टिश्यू में कोई 5-6 सेकंड तक ये प्रेशर अप्लाई करें और फिर छोड़े तो ये 5 सेकंड में कैपिलरी रिफिल होगा. लेकिन ग्रेड 2 शॉक में क्या होता है कि जब कैपिलरी रिफिलिंग टाइम 5 सेकंड से ज्यादा हो जाता है तो ग्रेड 2 में क्या चीजें हैं कि पल्स नैरो हो जाता है, टैकिकार्डिया ज्यादा होता है और कैपिलरी रिफिलिंग वो उसका टाइम 5 सेकंड से ज्यादा हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड टाइप ग्रेड 2 शॉक. इन ग्रेड 3 शॉक अब वहां आपने 15
15 to 30. Now in grade 3 the loss of blood is 30 to 40%. And if you will take in ml, so it is 1500 to 200 ml. The compensatory mechanism began to fail, and hypotension, tachycardia, and low urine output 0.5 ml per kg और in adult are seen. ठीक है, उसमें क्या होगा कि फिर इसमें हाइपोटेंशन हो जाती है. ग्रेड 3 में क्या होगा, जब 1500 to 200 ml blood loss होगा तो there is hypotension, and here compensatory mechanism started. There are multiple compensatory mechanisms, but the first compensatory mechanism is that we have storage of blood in some organ, like in spleen, in liver and kidney. So the liver, spleen and kidney push blood into the general circulation. ठीक है, उसमें ये blood उसमें general circulation में आ जाता है, और इसमें ये है कि फिर mechanism began to fail. ठीक है, कि हाइपोटेंशन कम हो जाए, टैकीकार्डिया कम हो, और इसमें यूरिन, रिमेंबर कि चूंकि किडनी परफ्यूजन कम है, किडनी में फिल्ट्रेशन कम होगी, तो उसमें से यूरिन का बनना कम हो जाता है. 1 ड्रॉप बनता है वो दैट इज इक्वल टू 1 ml पर आवर पर केजी बॉडी वेट, लेकिन इसमें ये कम हो जाता है 0.5 ml से. तो इसका मतलब है कि अगर बंदा यूरिन पास नहीं कर रहा है तो इट मींस दैट ही इज इन ग्रेड 3 शॉक. ठीक है, so this is seen in adult. Grade 4, a 40% and 50% loss of blood of volume ये 2000 से 2500 तक होता है. Here the person very severe hypotension occur in this condition if 50% of blood is lost, and will develop if it prolong, will cause an organ damage and death. अगर इसको आप वो नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, so this is a condition in which death of a person can occur. ठीक है, but it ultimately lead into death. Physiological causes of shock. क्या कौन कौन से फिजियोलॉजिकल काजेज हैं शॉक के? आपने ग्रेड समझ ले कि 4 ग्रेड हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4. नाउ फिजियोलॉजिकल काजेज में सबसे पहला कॉज जो आता है, द फर्स्ट कॉज इज कार्डिक एबनॉर्मेलिटी दैट डिक्रीज द एबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड. अब कार्डिक एबनॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं जिसमें हार्ट जो है एक्चुअली पंपिंग नहीं कर सकता. इसमें सबसे पहला जो है एबनॉर्मेलिटी है मायोकार्डियल इन्फॉर्क्शन. जब किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो उस वक्त वो हार्ट काम करना छोड़ देता है, ब्लड पंप करना बंद कर लेता है. तो दिस इज वन काज. But also toxic stages of the heart, severe heart valve dysfunction, heart arrhythmia and other condition. ठीक है, तो इसमें टॉक्सिक हार्ट कंडीशन क्या होगा? कीमोथेरेपी की वजह से हार्ट को टॉक्सिसिटी होती है. ड्रग्स, जब आप ड्रग्स लेते हैं तो उसके जैसे बीटा ब्लॉकर अगर आपने हाई उसमें डोज में ले लिए तो क्या होगा, ये हार्ट को डायलेट कर देते हैं या हार्ट को स्लो कर लेते हैं. ठीक है, हार्ट मसल को वीक कर लेते हैं. तो ये एक ड्रग है. जैसे डिजॉक्सिन है, उसकी टॉक्सिसिटी उसकी वजह से हार्ट के मसल पर और कंडक्टिव सिस्टम पर असर पड़ता है. कंडक्टिव सिस्टम ब्लॉक हो जाता है और हार्ट मसल जो है वो प्रॉपर दिन काम नहीं करते हैं. सीवियर हार्ट वेल डिस्फंक्शन. अगर आप अजीज साहब आपको पढ़ा रहे थे कि अगर वेल में वो है, अगर माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल रिगर्जिटेशन है, एवर्टिक स्टेनोसिस है, एवर्टिक रिगर्जिटेशन है, तो इन दिस कंडीशन क्या होगा कि मतलब ये कि माइट्रल वॉल स्टेनोज है, बंद है आगे की तरफ, तो ब्लड आगे नहीं जाएगा. जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा, जनरल सर्कुलेशन में ब्लड नहीं जाएगा, तो बैकवर्ड प्रेशर बनेगा लंग में.
ठीक है। तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो वहाँ डंप हो जाएगा और ब्लड जो है ना जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो इसकी वजह से भी होता है। अगर रिगर्जिटेशन हो तो फिर भी जो है ना जब हार्ट पंप नहीं कर सकेगा प्रॉपरली तो बैक आएगा हार्ट में और एरिथमिया। अगर हार्ट आपको जो है ना वो बता दिया कि 72 पर मिनट नॉर्मल में होता है कि पहले एट्रिया कंट्रैक्ट करता है देन वेंट्रिकल, और जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है तो एट्रिया रिलैक्स होता है। ठीक है, तो अगर ये रिदम कंट्रैक्शन of the atria and relaxation of the ventricle, contraction of the ventricle and relaxation of the atria, अगर ये रिदम बरकरार ना रहे और एरिथमियास हो जाए, एट्रिया अलग से कंट्रैक्शन शुरू कर दे और वेंट्रिकल अलग से कंट्रैक्शन शुरू कर दे, तो इसकी वजह से प्रॉपर पंपिंग ऑफ ब्लड नहीं होगी और इसकी वजह से शॉक हो जाएगा। The circulatory shock that results from diminished cardiac pumping ability called cardiogenic shock. अगर हार्ट की वजह से सर्कुलेशन में सही तरीके से ब्लड नहीं जा रहा है तो इसको इसके लिए प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं cardiogenic shock. Many as 85% of people who develop cardiogenic do not survive. अगर किसी को कार्डियोजेनिक शॉक हो जाए जैसे हार्ट अटैक में होता है तो फिर वो सरवाइव नहीं कर सकता, नहीं करता 85% पीपल। ठीक है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पर मेडिकल असिस्टेंस ना मिले तो ही विल नॉट सर्वाइव। ठीक है। Now the next factor that decrease venous return also decrease cardiac output because the heart cannot pump blood that does not flow into it. अब हार्ट में ब्लड नहीं आएगा, ठीक है, वीनस रिटर्न नहीं होगा और हार्ट में ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट उसको लंग में नहीं भेजेगा, लंग में ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, ऑक्सीजनेशन की फिर लेफ्ट एट्रियम में नहीं आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में और जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाएगा। तो जब कूलिंग ऑफ ब्लड इन द वेन हो जाए तो उसकी वजह से भी सर्कुलेटरी शॉक होता है और उसके बहुत सारे वजूहात हैं। ठीक है। The most common cause of decreased venous return is diminished blood volume. अगर वॉल्यूम कम हो जाए, but venous return can also be reduced as a result of decreased vascular tone. एक तो डिमिनिश वॉल्यूम, अगर एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए तो ब्लड नहीं है जनरल सर्कुलेशन में, ब्लड नहीं है तो लंग में हार्ट में नहीं आएगा और वो लंग को नहीं भेजेगा। लेकिन एक और वजह भी होती है कि वेस्कुलर टोन कम हो जाती है। आपको जब शॉक होता है जैसे साइकोजेनिक शॉक में या कोई एलर्जिक एनाफाइलेक्टिक शॉक, अगर मतलब जैसे पेनिसिलिन की इंजेक्शन आपने सुना होगा वो लग जाए एनाफाइलेक्टिक, तो उससे वेजो हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन ये चीजें रिलीज हो जाती हैं और उसकी वजह से ब्लड वेसल डायलेट हो जाते हैं। तो ब्लड की पूलिंग होती है वेसल में और वो हार्ट में नहीं, ब्लड आता नहीं है और इस वजह से वो सर्कुलेट नहीं होता, तो उसकी वजह से भी सर्कुलेटरी शॉक हो जाता है। स्पेशली वेनस ब्लड रिजर्वायर और obstruction to the blood flow to some point in circulatory, especially in the venous return pathway. ऐसा होता है कि इंफीरियर वीना केवा या सुपीरियर वीना केवा, इसमें ट्यूमर, अगर इसके सराउंडिंग में ट्यूमर हो या खुद इन वेसल्स में ट्यूमर हो जाए, वीनस जो सुपीरियर वीना केवा या इंफीरियर वीना केवा, अभी अजीज साहब ने आपको पढ़ा लिया है, ठीक है, या लीवर डिजीज हो तो ब्लड स्टिग्नेट हो जाता है वेन में। ठीक है, और ये ऊपर की तरफ हार्ट में नहीं आता, या जो ऊपर का हिस्सा है हेड का वो सुपीरियर वीना की वजह से ड्रेन होता है और नीचे से है ना इंफीरियर वीना की वजह से अगर इनमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो ब्लड आगे हार्ट में नहीं आएगा और सर्कुलेट नहीं होगा, ऑक्सीजनेट नहीं होगा और फिर सर्कुलेट नहीं होगा, तो इसकी वजह से शॉक हो जाता है। Circulatory shock that occur without diminished cardiac output. Cardiac output normal है फिर भी circulatory shock, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद a patient is in shock. Why?
occasionally the cardiac output is normal or even greater than normal. ठीक है, बाज औकात ऐसा होता है कि कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होता है या नॉर्मल से भी ज्यादा होता है। एनीमिया में कार्डियक आउटपुट नॉर्मल से ज्यादा होता है, ठीक है। Yet the person is in circulatory shock, फिर भी वो this can result from what? Excessive metabolism of the body so that even a normal cardiac output is inadequate. जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में होता है कि मतलब ये है कि उसमें मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाता है, तो सेल को जितनी डिमांड होती है ऑक्सीजन की या न्यूट्रिएंट की, क्योंकि मेटाबॉलिक एसिडोसिस डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में ऐसा होता है कि शुगर जो है ब्लड में जमा हो जाता है और वो सेल में नहीं जा रहा होता है, तो वो उसको न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रही है और उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से बंदा शॉक में चला जाता है, ठीक है। Abnormal tissue perfusion pattern so that most of the cardiac output is passing through the blood vessel beside those that supply the local tissue with nutrition. आजकल का जो ये जो स्टेटमेंट है दो, ये बिल्कुल नोट कर ले, ठीक है। इसमें क्या है कि आजकल क्या हो रहा है, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। हार्ट पंप ब्लड पंप कर रहा होता है, लंग में जा रहा है और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, लेकिन वहाँ क्या हो गया है कि लंग में एल्विलाई होती है, अभी आपने नहीं पढ़ी है एल्विलाई, लेकिन उसमें गैस एक्सचेंज जो है एल्व्यूलर उस एंड पर होता है, और इसमें एल्विलाई की जो दीवारें हैं, the walls of alveoli become thick and there is no exchange of oxygen and carbon dioxide between the lung and the blood, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वेलाई में नहीं आता और एल्वेलाई से ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाता, तो इस वजह से सर्कुलेशन हो रही है, हाइपरडायनामिक सर्कुलेशन भी हो सकती है, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, तो इसी तरह मतलब ये है कि वहां पर आपकी परफ्यूजन नहीं होती है एंड सेलुलर डेथ हो जाती है और बंदा शॉक में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो कोरोना वायरस है, ये आजकल ये लंग में मसला, ये हर जगह, किडनी में भी, किडनी फेलियर भी कर सकता है, लीवर भी कर सकता है, और ये इसकी वजह से स्ट्रोक भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेन काज इसका ये है कि ये एल्व्यूलर वॉल की थिकनेस हो जाती है, और बाज़ औक़ात कुछ टिश्यू ऐसे होते हैं कि जिसमें इन्फेक्शन होती हैं और वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। बस जैसे या बस पॉइजनिंग ऐसी है जो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की जगह जो है ना वो उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाता है, और ये जो है ना वो सेचुरेशन ऑक्सीजन की नहीं होती लंग में, तो वहां पर क्या है कि टिश्यू परफ्यूजन नहीं होती है और बंदा शॉक में चला जाता है। Atrial pressure in circulatory shock. A person may be in severe shock and still have an almost normal arterial pressure because of powerful nervous reflex that keep the pressure from failing. दो चीजें होती हैं, आप बंदा आपके पास हॉस्पिटल में आएगा, उसने ब्लड लॉस किया होगा, लेकिन जब आप उसका ब्लड प्रेशर चेक करें तो नॉर्मल होगा, तो आप कहेंगे ये तो शॉक में नहीं है, इसका तो बीपी ठीक है, लेकिन एक्चुअली दिस पर्सन इज इन शॉक, बट हाउ इज ब्लड प्रेशर इज रेज बिकॉज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या होता है कि उसका जो है ना ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, तो ये एक किस्म है कि डिटेल में अभी बताता हूँ, लेकिन सिर्फ अब ये एक टाइप के ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन बंदा शॉक में, और दूसरे में ये है कि another time the arterial pressure can fall to half of the normal, but the person still has normal tissue perfusion and is not in shock. दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि बीपी उनका नीचे चला गया होता है, लेकिन वो शॉक में नहीं होता, तो ये वाला बंदा जो जिसका बीपी हाई है, ठीक है, शॉक में और बीपी नॉर्मल है, इसकी क्या वजह है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। End result of circulatory shock. Once circulatory shock
reaches a critical state of severity, the shock itself breed more shock. देखें कि जब ये एक सर्कल सर्कल शुरू हो जाता है शॉक का, ठीक है, जब 50% लॉस हो और एक मरतबा बंदा शॉक में चला जाता है तो फिर शॉक खुद शॉक को ब्रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। मसलन कैसे कि अगर कार्डिक आउटपुट कम है तो रिनल आउटपुट कम होगा, किडनी में से वहां से रेनिन एंजियोटेंसिन आएगा, उस रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या कर लेता है कि फिर वो मतलब ये कि वेस्कुलर स्पेज्म होगा, वेस्कुलर स्पेज्म होगा तो फिर मजीद जो है ना वो टिश्यू परफ्यूजन कम हो जाएगी। तो ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है, इसमें मल्टीपल स्टेजेस है और ये आपको मेडिकल वाले डिटेल में पढ़ाएंगे। लेकिन ये ब्रीडिंग इस तरह होती है कि जब एक सिस्टम फेल हो जाता है तो दूसरा होता है, दूसरा तीसरे को फेल करता है, तीसरा चौथे को, और इस तरह ये एक विशेष सर्कल शुरू हो जाती है कि एक सिस्टम जब फेल होता है तो दूसरा तीसरा और चौथा भी फेल होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं ब्रीडिंग ऑफ शॉक, ठीक है, ब्रीडिंग ऑफ शॉक इटसेल्फ। That is, the inadequate blood flow cause the body tissue to begin deteriorating, including the heart and circulatory system itself. This caused an even greater degree in cardiac output and a vicious circle ensure that the progress increase circulatory shock। ये जो मैंने आपको विशेष साइकिल बता दिया हुआ। अब स्टेजेस की क्या है, जब मैंने ग्रेड्स बता दिए स्टेजेस में, अब आपने समझने हैं कि shock is divided into the following three major stages। तीन स्टेजेस हैं इसके शॉक के। A non-progressive stage called the compensated stage, in which normal circulatory compensatory mechanism eventually cause full recovery without help or from outside। ये जो नॉन प्रोग्रेसिव, अगर एक बंदा शॉक में चला जाता है, आपने देखा होगा कि बंदे गिर जाते हैं और थोड़ी देर के बाद वो उठ के बैठ जाते हैं और सर हिला के फिर आंखें खोल लेते हैं और वो रिकवर कर जाते हैं। तो इस टाइप के शॉक को नॉन प्रोग्रेसिव शॉक कहते हैं। ये सेल्फ रिकवरी, इसमें कंपनसेटरी मैकेनिज्म है बॉडी में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उन कंपनसेटरी मैकेनिज्म की वजह से अ पर्सन बिकम आउट ऑफ शॉक, फिर वो शॉक से बाहर निकला जाता है। ये नॉन प्रोग्रेसिव, उसमें आप चाहे ट्रीटमेंट दें या ना दें, मैनुअली अगर आप उनको कुछ सपोर्ट दें तो उससे वो रिकवर हो जाता है, अगर ट्रीटमेंट ना भी दें तो वो रिकवर होता है। प्रोग्रेसिव स्टेज in which without therapy the shock becomes steadily worse until death। इसमें क्या होगा, ये ऐसा शॉक है स्टेज 2 जिसको प्रोग्रेसिव शॉक कहते हैं। इसमें अगर आप बंदे को ट्रीटमेंट ना दें, इलाज इसका ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता फर्दर उसका शॉक एग्रीवेट होगा एंड अल्टीमेटली द पर्सन विल डाई। एन इररिवर्सिबल स्टेज ऑफ शॉक, इन दिस कंडीशन, इसमें क्या होता है कि a person when goes into irreversible stage of shock you can't recover even with a medical help। ठीक है, अगर आप फिर उसको ट्रीटमेंट भी दे दें तो वो रिकवर नहीं होता, तो इसको इररिवर्सिबल स्टेज कहते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव में आप ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, प्रोग्रेसिव में अगर आप ट्रीटमेंट दे दें, ब्लीडिंग स्टॉप कर ले या ऑब्स्ट्रक्शन स्टॉप कर ले, ठीक है, या ऑक्सीजनेशन कर लें तो ही विल रिकवर। और इसमें आप चाहे सारे मैंने बोला, आप डीसी शॉक भी दे दें, आप ब्लड भी दे दें, आप वॉल्यूम भी एक्सपेंडर भी दे दें, ऑक्सीजनेशन भी कर लें और ग्लूकोकार्डिकाइड भी दे दें, स्टेरॉइड भी दे दें, ठीक है, इसके बावजूद भी ही विल नॉट रिकवर। दिस इज इररिवर्सिबल शॉक। नाउ शॉक caused by hypovolemia। हेमोरेजिक शॉक, हेमोरेजिक शॉक में क्या है, हाइपोवोलेमिया मींस डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, हाइपोवोलेमिया किसको कहते हैं, डिमिनिश्ड ब्लड। हेमोरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। हेमोरेज जो है इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ hypovolemic shock। Hemorrhage decrease the filling pressure of the circulation and as consequence decreased venous return, as a result the cardiac output fall below normal and shock may ensue। जब ब्लड कम होगा तो फिर venous return कम होगी, venous
वीनस रिटर्न टू द हार्ट कम होगा, और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि फिर हार्ट में ब्लड नहीं होगा तो लंग में नहीं जाएगा, ऑक्सीजनेट नहीं होगा और जनरल सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, तो हाइपोवॉल्यूमिया की वजह से ये होता है। रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट एंड arterial pressure, ठीक है। The approximate effect of both cardiac output and arterial pressure of the removing blood from the circulatory system over a period of about 30 minutes. About 10% of the total volume can be removed without almost no effect on either arterial pressure or cardiac output. ये ग्राफ आप देखें, ये रेड जो लाइन नजर आ रही है आपको, दिस इज कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एंड दिस इज, ये क्या है, दिस इज वॉल्यूम। 10% ब्लड अगर आप किसी बंदे से निकाल लें या उसको रिमूव कर लें या किसी और वजह से वो 10% ब्लड ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट लॉस कर लें, आप जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो वो आपसे स्लोली ब्लड लेते हैं, ठीक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ तो इतना टाइम नहीं लेते, लेकिन प्रैक्टिकली अगर 30 मिनट में ब्लड आप 10% ब्लड लॉस होगा, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ ऑन कार्डियक आउटपुट और वेरी लिटिल। ये देखिए, ये 100% है और 10% ब्लड लॉस अगर हो गया तो उसके बाद क्या होगा, ये कार्डियक आउटपुट पर असर नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 15% पर ग्रेड 1 शॉक अपेयर होता है, ठीक है, टेकिकार्डिया होता है, और उसमें मतलब ये है कि आपको पता चल जाता है कि ये ग्रेड 1 है। इस तरह जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे और ब्लड लॉस का मतलब अगर 20 ml कर ले, 30 सॉरी ये परसेंटेज है, 20% निकाल ले 30 या 40 एंड एट 45-50 पर जो है कार्डियक आउटपुट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक बात ये वो ख्याल रखें कि लो जब प्रोलॉन्ग टाइम में आप थोड़ा सा ब्लड रिमूव करते हैं बॉडी से तो कार्डियक आउटपुट पर असर नहीं पड़ता, लेकिन जब परसेंट ऑफ लॉस इंक्रीज करता है 20%, 30%, तो साथ साथ में कार्डियक आउटपुट भी नीचे आता जाता है, ठीक है। तो ये अगर 50% हो तो कंप्लीट शॉक हो जाता है एंड देन वी नीड असिस्टेंस। अगर असिस्टेंट आप ना दें तो देयर इज अ डेंजर बट not only danger but a person can die, ठीक है। Sympathetic reflex compensatory क्या है, the decrease in arterial pressure after hemorrhage as well as decrease in pressure in the pulmonary artery and vein in the thoracic cause for boost sympathetic rate। अब जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, लंग में हो, पल्मोनरी आर्टरीज में हो या, तो क्या होगा कि इट कॉज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम शायद आप लोगों ने अभी पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन इसका काम क्या है कि ये इट कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। Initiate many arterial baroreceptor and other vascular stretch receptor। दूसरा मैं कहना, एक तो sympathetic stimulation है, दूसरा कौन सा है, baroreceptor। ये होते हैं एवर्टा में और ये बाइफरकेशन ऑफ एवर्टा जो इंटरनल और इंटरनल जैगुलर वेन आर्टरीज हैं, इसमें ये baroreceptor और stretch receptor लगे होते हैं। तो जब वॉल्यूम कम होता है तो इन ये या तो स्ट्रेच, अगर स्ट्रेच हो जाए तो इसका मतलब है कि भी बढ़ गया है तो उसको डाउन करते हैं, और अगर ये इसकी स्ट्रेच कम हो जाए या अगर सेचुरेशन
उसमें ऑक्सीजन की कम हो तो वो उसको नोट कर लेते हैं और इसी वजह से इसका रिस्पांस होता है कि वो वेसल को या स्ट्रेच कर ले या डायलेट कर ले. The artery consists in most part of the sympathetic system is thereby increasing the total peripheral resistance. जब sympathetic stimulation होती है तो पूरे सिस्टम में पूरे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जनरल सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें वेसल्स की कंट्रैक्शन हो जाती है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाते हैं तो ब्लड प्रेशर जो है ना वो शूट करता है या ज्यादा हो जाता है. The vein and venous reservoir contract thereby helping to maintain adequate venous return deposit diminish blood volume. अब अगर मतलब ये कि sympathetic स्टिमुलेशन का एक तो ये कि वेस्कुलर कंट्रैक्शन करते हैं, दूसरा ये रिजर्वायर को भी कंट्रैक्ट करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि स्प्लीन, लीवर और किडनी ये ब्लड रिजर्वायर है, इसमें ब्लड जमा होता है अराउंड अबाउट 500 ml ब्लड आपके पास इजाफी पड़ा रहता है. तो जब ये ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तो इन ऑर्गन की सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से कंट्रैक्शन हो जाती है एंड दे ट्रांसफर पुश इट्स ब्लड इनटू जनरल सर्कुलेशन, तो वो वॉल्यूम की कमी को दूर कर लेते हैं. हार्ट एक्टिविटी इंक्रीज मॉडली समटाइम इंक्रीज द हार्ट रेट फ्रॉम द नॉर्मल 72 to 160 180. अब जो है मतलब ये कि ब्लड कम है तो उसको कम ब्लड को बॉडी को पहुंचाने के लिए क्या हो जाता है कि हार्ट रेट तेज हो जाता है, जल्दी ब्लड आता है और जल्दी सर्कुलेट होता है. तो उस वजह से परफ्यूजन और न्यूट्रिशन दोनों उसकी बरकरार रहती है बॉडी की. तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जो कि सिंपैथेटिक, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इफेक्ट वेसल्स पर भी है और हार्ट पर भी. हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करता है. ठीक है, कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल होती है. वॉल्यूम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस रिफ्लेक्स. ठीक है, in the absence of sympathetic reflex only 15 to 20% of the blood volume can be removed over a period of 30 minutes before a person die. अगर sympathetic stimulation ना हो, ठीक है, अगर sympathetic stimulation जो है ना वो अपना काम छोड़ दे तो आप 15 to 20% ब्लड 30 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं. उसके बाद अगर आप ज्यादा ब्लड वो करेंगे तो पर्सन डाई होगा, क्योंकि वो वाला हार्ट रेट तेज होगा और ना वेस्कुलर कंट्रैक्शन होगी. तो दिस इज द कंट्रास्ट टू ए 30 to 40% लॉस ऑफ ब्लड. जैसे मैंने स्टेज 3 में क्या होता है कि 30 to 40% ब्लड लॉस होता है, तब भी जो है ना बंदा जो है उसकी डेथ की अगर उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल जाए तो ही कैन रिकवर, वो उसकी डेथ नहीं होती. लेकिन अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंटैक्ट नहीं है, ठीक है, एड्रेनल मेडुला इंटैक्ट नहीं है और वहां से ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन नहीं आ रहे हैं तो वेस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं होगी, हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा और जो रिजर्वायर है वो अपना ब्लड जनरल सर्कुलेशन को नहीं भेजेंगे. तो इन दैट कंडीशन अ पर्सन कैन डाई इन बाय लॉस ऑफ 15 to 20% ऑफ ब्लड. लेकिन अगर ये सिस्टम इंटैक्ट है तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन कैन सर्वाइव लॉस ऑफ 30 to 40% ऑफ ब्लड. नाउ इसमें एक और मैकेनिज्म है जिसको हम कहते हैं ग्रेट इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस reflects in maintaining arterial pressure that in maintaining cardiac output. अब ये आप देखें, ये एक वो है ग्राफ है जो arterial pressure के बारे में है. ये cardiac output है और ये क्या है, ये arterial pressure है. ठीक है, arterial pressure is maintained at normal value in hemorrhagic person longer than
इज द कार्डिक आउटपुट। देखें ये कार्डिक आउटपुट जब ब्लड वेसल क्या होगा, सॉरी जब ब्लड लॉस होता है तो 10% तक तो कार्डिक आउटपुट पर कुछ कुछ असर नहीं होता है, लेकिन जब 20% तो कार्डिक आउटपुट नीचे आ जाता है। लेकिन वेस्कुलर टोन जो है या ब्लड प्रेशर जो है वो कम नहीं होता। ये देखिए ग्राफ में ये ज्यादा है, ब्लड प्रेशर कार्डिक आउटपुट कम हो गया है, लेकिन ये वाला जो ब्लड प्रेशर है वो अभी तक मेंटेन है। और इसमें कर्व आ जाता है किसी हद तक, जब लॉस ज्यादा होती है तो आखिरी स्टेज में जब 50% लॉस होता है तो एक और शूट करता है। ये जो आर्टीरियल प्रेशर है या ब्लड प्रेशर एक मरतबा और शूट कर लेता है। इस शूट की वजह ये है कि ब्रेन से बहुत ज्यादा पावरफुल सिग्नल्स रिलीज होते हैं सिंपैथेटिक, जो इन वेसल्स को आखिरी लम्हात में कंट्रैक्ट कर लेते हैं और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि वाइटल ऑर्गन ब्रेन और हार्ट को ब्लड सप्लाई मेंटेन हो। तो दिस इज द लास्ट एफर्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम डेथ। ठीक है, तो इसमें ये है कि जब जैसे जैसे वॉल्यूम कम होता जाता है तो हार्ट कार्डिक आउटपुट कम होता है, लेकिन उसी रफ्तार से जो है आपका आर्टीरियल प्रेशर कम नहीं होता। और आखिर में ये जो वाला ये शूट जो है ये ब्रेन से एक स्पेसिफिक वो इम्पल्स रिलीज होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर लेते हैं। स्पेशली इंटरेस्टिंग इज दी ये इस वाले ग्राफ जो मैंने आपको बता दिया, ये इसको कहते हैं लास्ट डिच, आखिरी डिच उसको दे देते हैं। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि जब पूरे सिस्टम में आर्टीरियल या वेस्कुलर कंट्रैक्शन होती है तो दो जगहों पर वेस्कुलर कंट्रैक्शन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से नहीं होती है। एक जगह है हार्ट और दूसरी जगह है ब्रेन। सो ब्रेन वेसल और कार्डियक वेसल कंट्रैक्ट नहीं करते। जैसे कोरोनरी आर्टरी अभी आपको अजीज साहब ने पढ़ा है, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से इस जब बंदा शॉक में होता है तो वो coronary artery or brain vessels, they don't go into spasm, and that's because they are very vital organ, so the blood supply to their organs are maintained। ठीक है, वो कंट्रैक्ट नहीं करते तो वो मेंटेन रहते हैं और इस वजह से जो है आखिरी वक्त तक ये दोनों ऑर्गन जिंदा रहते हैं। ये बात मैंने आपको समझा दी ना। आप ट्रीटमेंट में मैं आपको ये इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये मेडिकल पर्सनल आपको पढ़ाएंगे। आप ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। आप कोई बंदा शॉक में है तो आप प्लाज्मा दे दें, इन शॉक ब्लड हो तो ब्लड दे दे, ब्लड ना हो तो प्लाज्मा दे दें। और जब अगर कोई डिहाइड्रेशन हो गई हो, किसी ने मतलब ये कि उल्टियाँ की हो 10 ज्यादा लें, तो आप जो है ना वो दे सकते हैं, ग्लूकोज सेलाइन या रिंगल लेक्टेट दे सकते हैं। और होल ब्लड नॉट अवेलेबल तो फिर आप क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा कैन बी सब्स्टिट्यूट। पहले तो ब्लड देना है, ये जो है ना, उसके अलावा आपने डिहाइड्रेशन है तो वो सेलाइन ड्रिप या वो दे दें, आप रिंगल लेक्टेट दे दें। अगर ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं तो प्लाज्मा भी दे सकते हैं ब्लड की जगह। ठीक है, और प्लाज्मा एक्सपेंडर जो है ये अवेलेबल है हेमासील वगैरह की वजह से, जो प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। ठीक है, डेक्सट्रेन के नाम से भी अवेलेबल है और हेमासील की वजह से भी के नाम से भी अवेलेबल है, तो आप ये चीज़ें दे सकते हैं। हेड डाउन कर सकते हैं आप। तीसरा तरीका ये है कि आप वो अगर कोई बंदा शॉक में तो आप इसके हेड को डाउन कर लें। ठीक है, तो उसकी वजह से ब्लड जो है हार्ट और उसमें चला जाएगा और मतलब ये है कि पेरिफेरी से सेंटर में हार्ट और ब्रेन को
ब्लड की सप्लाई मेंटेन रहेगी, so the person will be not go promptly into shock. ऑक्सीजन थेरेपी अगर मतलब ये मतलब ऑक्सीजन अगर अवेलेबल है तो आप ऑक्सीजन दे दें। आजकल तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी है, फैक्ट्रीज में से भी बनी, तो मतलब ये कि ये स्टेप्स हैं कि आपने ब्लड देना है पहले, उसके बाद अगर डिहाइड्रेट है तो उसको रिहाइड्रेट करना है, प्लाज्मा देना है, प्लाज्मा नहीं तो प्लाज्मा एक्सपेंडर दे दें, वो हेड डाउन कर ले। और इसके अलावा आप जो है ना ये ऑक्सीजन थेरेपी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कार्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं, उसमें मुख्तलिफ इंजेक्शन है, ठीक है। इसकी उसकी वजह से क्या होता है कि इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इन द लेट स्टेज ऑफ शॉक। ये कार्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेते हैं। ग्लूकोकार्टिकोइड स्टेबलाइज लाइसोसोम इन द टिश्यू सेल, ये लाइसोसोम को स्टेबलाइज कर लेते हैं टिश्यू सेल में, तो इस वजह से वो डेथ प्रोसेस को स्लो कर लेते हैं। ग्लूकोकार्टिकोइड माइट एड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज बाय सीवियरली डैमेज सेल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। A patient who is hypovolemic shock, उसको hypovolemic shock है, has the following clinical sign। इसमें आपने ये साइन हार्ट रेट 120 बीट्स पर मिनट, ये 3 मरतबा लिखा हुआ है। ब्लड प्रेशर 80 ओवर 55, इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 है और डायस्टोलिक 55 है। एंड यूरिन आउटपुट 20 ml पर और, ठीक है। आफ्टर administration of IV fluid, which of these signs, if noted by the healthcare provider, is best indication of improved perfusion? इसमें तो आपने ये चीजें दे दी उसको, मतलब ये कि आपने ड्रिप लगा दिया, तो उसमें कौन सी चीजें? राइट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज, B systolic blood pressure increase to Dumra, ठीक है, and urine output increase to 30 ml, ठीक है, and heart rate drop to 100। वहां पर कितना था? 120 था, और यहाँ पर कितना है? 100 है। तो अब अगर हार्ट रेट वहां से 120 से 100 पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि द पेशेंट इज इंप्रूविंग। ये स्टेज ग्रेड 1 में आपने कि उसमें माइल्ड टेकिकार्डिया था। अगर टेकिकार्डिया इंप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बंदा, तो इसका राइट आंसर क्या है? ये वाला 100 वाला जो है कि इसका हार्ट रेट कम हो गया है। A patient is admitted to the emergency department after suggestion abdominal injury and a broken fracture from a motor vehicle accident। इसका एक्सीडेंट हुआ है तो एब्डोमिनल में ब्लीडिंग हो गई और फ्रैक्चर ऑफ फीवर भी हो गया, तो फीवर की फ्रैक्चर से तकरीबन 500 ml ब्लड जो है लॉस होता है। The patient is pale, diaphoric and is not talking coherently, ठीक है। ये नजर मुझे आर टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर 98 है, हार्ट रेट 130 बीट पर मिनट है, रेस्पिरेटरी 34 है, ब्लड प्रेशर 50-40 है, एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सस्पेक्ट विच टाइप ऑफ, अब कौन सा, इसको कौन सा शॉक हुआ है? डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है, कार्डियोजेनिक शॉक है, न्यूरोजेनिक शॉक है, या हाइपोवोल्यूमिक शॉक है। तो कौन सा शॉक इसको हो गया है? हाइपोवोल्यूमिया। ब्लड भी नहीं, यूरिन भी नहीं पास कर रहा, हार्ट रेट भी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर भी कम है, ठीक है, और बंदा उसमें शॉक है, और उसको क्या जब वो दे दिया गया तो, ठीक है, सॉरी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने जब ये साइन देके तो उसको पता चला कि बंदे ने ब्लड लॉस किया हुआ है, ठीक है। तो these are the answers. Now you can ask questions. We have 5 minutes more to go. तो आप
किसी का कोई क्वेश्चन हो तो